اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ اس چیپٹر کا لاسٹ لیسن ہے، اس میں ہم جتنا پڑھا ہے نا اس کو ریویو کریں گے کویسچنس کی شکل میں، اور ایک قسم کا یہ ٹیسٹ ہو جائے گا ہمارا کہ کتنا ہمیں یاد ہے۔ تو اور اب تک اگر سارے جتنا ہم نے یہ چیپٹر 30 لیسنس کیے ہیں نا، اس میں تقریباً ووکیبلری آپ کو 200 جو لفظ ہیں یاد، اس کے میننگ یاد ہو جانا چاہیے۔ تو وہ پورا اگر آپ دیکھیں تو اتنا ہماری ووکیبلری بھی ہوگی اب تک۔ تو آپ شروع کرتے ہیں اس کو ایک کویسچنس۔ تو اس میں 5 قسم کی ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو پہلا کویسچن ہوگا کہ اس میں ہم نے لسٹ ہوگی، اسم ہوں گے سب، تو اس کے ہم نے اعراب بتانا ہے، یعنی کہ سٹیٹس، کہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اور اس کی اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے شناخت کیا ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس کی آخری آواز سے کیا ہے، جیسے اون، ان، ان یا آ، او، ای سے، یا اختتام پہ اس کے کمبینیشن آ رہا تھا، جیسے کہ آنا، آنی، آئینی، آتن، آتین، یا اونا اور اینا، تو اس طرح کے کمبینیشن آتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دونوں چیزیں بتانی۔ دوسرا کویسچن ہوگا جس میں یہ بتانا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈفرینٹ قسم کے جمع ہوتی ہیں الفاظ کی، اسم کی، تو ہم نے بتانا ہے کہ کون سی ہے، یعنی کہ یہ مذکر جمع ہے یا مؤنث جمع ہے یا بروکن پلورل ہے، جس کو جمع تکبیر بھی کہتے ہیں، اور یا یہ اسم جمع ہے۔ پھر جو تھرڈ کویسچن میں ہوگا کہ مذکر مؤنث بتانا ہے کہ یہ ورڈ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ چوتھے کویسچن میں بتانا ہے کہ یہ کس قسم کا مؤنث ہے۔ تو مؤنث ہوں گے سارے، اس میں بتانا ہے کہ کون سی ٹائپ ہے، یہ فیک ہے یا ریئل ہے اور بروکن پلورل ہے، تو اس طرح کی قسمیں آئیں گی اس میں۔ اور لاسٹ کویسچن میں ہمیں اسم ہوں گے تو ان کی چاروں خصوصیات بتانی ہے ہم نے، کہ اس کی اعراب کیا ہے، اس کا جنس کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، اور اس کی قسم کیا ہے، پراپر ہے یا وہ کامن ہے، اس میں نکرہ ہے یا اس میں معرف ہے۔ تو آج ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ساتھ ہیں، تو وہ بھی ایکسرسائز میں شامل ہوں گے۔ تو پہلا کویسچن ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے کویسچن میں ہم نے رفع، نصب اور جر بتانا ہے۔ تو اس میں کچھ رائٹ سائڈس کے ٹیبل سے شروع کرتے ہیں۔ المبینی، المبینی ایک اسم ہے، تو اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، اور ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو حرکہ سے پہچان کرنی ہے یا حرف سے پہچان کرنی ہے، حروف ہیں اس کے اینڈ پہ۔ تو جب بھی ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا کہ اعراب، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف ہیں اینڈ پہ ایڈ ہوئے ہوئے، وہ پہلے دیکھنا ہے اپنے۔ تو حروف ہمیں کون کون سے یاد ہیں، کیا کیا ایڈ کرتے ہیں ہم؟ آنی، آئینی، آئینی، آنی، عینی، اصل میں یہ آئین نہیں ہے، اینا، آئین، آنی، عینی زبر کے ساتھ پہلا، اور یہ تو دو کے ساتھ آتا ہے نا، جی، ٹھیک ہے، اور جمع کے ساتھ کیا آتا ہے، پلورل کے ساتھ؟ اونا، اینا، ہونا اور اونا، اینا، اینا، اور مؤنث والے میں آتون اور آتین، آتی، تو الف کے ساتھ۔ تو اب ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، المبینی۔ تو کیا ہوگا، یہ اس کی پہچان ہم حرف سے کریں گے یا حروف سے کریں گے یا حرکت سے حرکت کریں سے، گے؟ حرکت تو نون کے نیچے زیر ہے، تو پھر تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر حرکت سے کریں گے۔ لیکن ہمیں جر دیکھنا بھی ہو ہے، سکتا ہے اور نصب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں یہ کمبینیشن تو نہیں ہے، پہلے یہ چیک کرنا ہے، پھر حرکت دیکھنا۔ تو اینا آیا ہے نا اینڈ پہ، یہ والا اینا، تو اس کا مطلب مبینہ۔ تو اگر ہم مسلم ان ٹیبل سے اس کو کمپیئر کریں تو المبینو ہوگا، المبینہ، المبینی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، المبینانی، المبینینی، المبینینی، المبینون، المبینین، المبینین۔ تو ای، یا اور نون لگا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن وہ پارٹ نہیں ہے لفظ کا، تو اس لیے مبین ایکچولی ایک ورڈ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو
जर, जर कहेंगे आप, सही कहा आपने, जर। और कैसे इसको हमने फाइंड किया है? ये कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है। तो ये पहला ही आपका मुश्किल वर्ड था ये, कि इसमें या और नून ऑलरेडी उसका पार्ट था। नेक्स्ट है मुनकलिबूना। तो इसका कौन रमा। बताएगा? ये इसम है, ये रफा। रफा है, नसब है, रफा में है। रफा में, रफा में है रफा। क्योंकि ऊना एंड पे आया, वाव और नून, ऊना। जैसे मुस्लिमूना, मुमिनूना। तो ऊना अगर एंड पे आया है तो इसको हम कहेंगे कि ये रफा है, रफा हालत। और हरूफ की वजह से हमने इसको पहचाना। आखिर में कॉम्बिनेशन था। बनातिन। नेक्स्ट है बनातिन। बनातिन के एंड पे पहले हमने देखना है कि एंड पे कॉम्बिनेशन तो नहीं है। आतिन, आतिन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो आतिन है तो हमने इसको कॉम्बिनेशन से पहचाना है, तो हरूफ है एंड पे आए। अब देखना यह है कि ये रफा है, नसब है, या जर है। नसब या जर। तो हम इसको देखेंगे तो नस्ब हमें और इसको, हाँ जी, तो हमें चार्ट हमने याद किया था ना, मुस्लिमतुन वाला चार्ट, तो उसको उसको हमने उससे मैच करना है। तो जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, और मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातीन मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो क्योंकि दोनों नसब और जर मुस्लिमातिन थे, बनातिन नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, तो ये दोनों है। और हमें जब ये और ये इस्तेमाल होगा जमा। किसी, हाँ जी, और ये जमा मुअन्नस सालिम सालिम है। हाँ जी, वो हम बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने रफा और नसब और जर बता। ठीक। नेक्स्ट है अर्रहमानी। अर्रहमान, जल। तो इसको हमने नस्ब। हरकत से पता चला या हरूफ से पता चला? हरकस। हरकत से। हालांकि एंड पे आनी है इसमें, लेकिन रहमान एक्चुअली पूरा एक लफ्ज है, तो आनी हमने इसमें नहीं देखना, हमने देखना है कि एंड पे कौन सी हरकत है। जैसे मुबीन था, अर्रहमानी, तो ये ई की साउंड आई है एंड पे, तो जार होगा। नेक्स्ट वर्ड है मुस्तमसिकून। तो मुस्तमसिकुन, मुस्तमसिकन, मुस्तमसिकिन वर्ड होता है। मुस्तमसिकानी, मुस्तमसिकैनी, मुस्तमसिकैनी, मुस्तमसिकूना, मुस्तमसिकीना, हमें सुनाना चाहिए। और मुस्तमसिकीना। मुस्तमसिकीना रफ। मुस्तमसिकीना। तो रफा हालत। ये मुस्तमसिकूना है, तो रफा। ऊना एंड पे ऊना है, तो हरूफ से हमने पता किया, और रफा हालत। नेक्स्ट क्या है? आकिबतु। आकिबतु में हम हरकत देखेंगे या हरूफ देखेंगे? हरक। हरकत। हरकत, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन कोई भी जो हमने लिखे हैं ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा। रफा। तो ये क्या होगा? रफा। रफा। क्यों? ऊ रफा। साउंड आ रही ना एंड पे, तो ऊ साउंड आए तो रफा। अल करियतैनी, इसका इसका चार्ट कौन बताएगा? अल करियतुन, अल करियतु, चार्ट इसका। अल करियतु अल करियता अल करियती अल करियतानी अल करियतैनी अल करियतैनी। तो ये मैच हो गया, अल करियतैनी, राइट। तो इसके एंड पे कॉम्बिनेशन से हमें पता चलेगा। नसब और जर। तो कॉम्बिनेशन अल करियतानी, अल करियतैनी, अल करियतैनी, ये दोनों हो सकते हैं, नसब और जार। वाहिदतन, नसब। नसब होगा, और पता कैसे चला हमें? हरफ। हरका से, तन। अन की साउंड या आ या अन साउंड हो तो नसब। नेक्स्ट है सुलेमान। अब सुलेमाना एक नाम है, तो जब जी। नाम नाम है तो फिर एंड पे कॉम्बिनेशन नहीं हम देखेंगे ना। तो ये क्या बनेगा? ये सुलेमान, हरका से पता चलेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है, नाम है एक। और रफा नसब जार में से क्या है ये? नसब। नसब या सुलेमान। जर। हाँ, तो इसमें इसमें हमें एक ट्रिक ये है कि ये नॉन नॉन फ्लेक्सिबल। अरब नेम है ना, तो नाम अरब अरब नेम क्या होते हैं?
नॉन फ्लेक्सिबल उसको कहते हैं और पार्टली पार्टली मुंसलिक फ्लेक्सिबल। तो उसमें गैर मुंसलिक इस्मा। हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि नसब और जर सेम होता है, और उसमें जी कसरा नहीं आती एंड पे। तो सुलेमानु, सुलेमाना, सुलेमाना, तो ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, दोनों दोनों हो सकते हैं। जैसे इब्राहिमु, हाँ जी, इब्राहिम, इब्राहिमा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका नाम भी ऐसे ही। हाँ, इफरीतुन, रफा। रफा हालत में है, और हरका हरका से पता चला। जब तनवीन आती है तो देन आसान है वो, क्योंकि तनवीन जब भी आएगी तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन हरूफ तो हो ही नहीं सकते, वो हमेशा जी हरका ही होगी जब तनवीन आएगी। तो तनवीन का आसान है, तो उन साउंड, अन साउंड और इन साउंड। और तनवीन जब आती है तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल भी नहीं होते वो, जैसे सुलेमान आया था ना, सुलेमाना, इस तरह भी नहीं होते। तनवीन जब भी आती है तो वो तीनों हालतें उसकी अपनी अपनी होंगी। अल जिन्नी, जर अल जिन्नी जेर की वजह से, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसका, हमें किससे पता चल, हरका से, जार। फरीकानी, फरीकानी का टेबल कौन बता, फरीकानी। तो इसका टेबल कौन बताएगा? फरीकुन, फरीकुन, फरीकन, फरीकिन, फरीकानी, फरीकैनी, फरीकैनी। हाँ जी, तो ये फरीकानी है तो रफा। रफा। फरीकानी अगर होता है तो फिर नसब और जर करके इसको। नसब या जर जी। मतारू, मतारू, रफा। रफा, हरकत से पता चल गया आपको फौरन, मतारू। मुसरिफीना, नस्ब और जर ईना, 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 नसब और जर। नसब और जर, और पता कैसे चला? हरूफ से। हरूफ से। मसलू, रफा रफा। रफा, और पता कैसे चला? हरकत से। हल्का से। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी कि इसमें हमने पहचाने हैं ये मल्टीपल वर्ड्स के, इसका ये रफा है, नसब है या जर। तो अगली एक्सरसाइज हमने करनी है, उसमें हमने बताना है कि ये जमा, जमा होंगे सारे, लेकिन किस किस्म का जमा है वो, नंबर हमने बताना है कि हैं ये सारे जमा ही, एक तो इसमें नहीं आएगा, ज्यादातर जमा सारे जमा ही हैं, लेकिन हमें बताना है कि कौन सी किस्म का जमा। तो जमा मुजक्कर होता है, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिम मीना, मुस्लिमीना, इस तरह की साउंड करते हैं। जमा मुअन्नस होता है, जो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन की तरह साउंड करते हैं। जमा तकबीर होता है कि उससे आप, उससे मीनिंग से आपको पता चलता है कि ये जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सिंगल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें जमा हमने वो पढ़े थे कि सिर्फ जो अरब जिसको जमा के तौर पे लेते हैं, और उसमें हमें तीन लफ्ज हमने याद किए थे, नास, कर्न और कौम। कौम तो ये हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे। अस्समावाती, इसको जमा तकबीर कहते हैं। जमा तकबीर कहते हैं ब्रोकन प्लूरल को। अस्समावाती, ब्रोकन प्लूरल होता है कि वो रूल फॉलो नहीं करता। अगर आतुन, आतिन लगा हुआ है तो वो रूल फॉलो कर रहा है। ऊना और ईना लगा हुआ है तब भी वो रूल फॉलो रूल कर रहा है। फॉलो कर रहा है। तो जो रूल फॉलो नहीं करता है वो जमा के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको जमा तकबीर कहते हैं। तो अस्समावाती, जमा मुअन्नस। ये जमा मुअन्नस, क्योंकि आतुन, आतिन जब भी आएगा एंड पे तो वो मुअन्नस वाला मुअन्नस हो है। अनहारन, दरिया को कहते हैं, गया। ज्यादा दरिया को। तो जमा मुजक्कर। हाँ, जमा ये तकबीर होगा, क्योंकि ऊना ईना एंड पे आएगा तो जमा मुजक्कर हम कहेंगे उसको। जी तो ये जी जमा तकबीर। ठीक। सौदिकीना, तो ये फॉलो कर जमा रहा मुजक्कर। है, हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ऊना और ईना का, सौदिकीना, नवीना। मुस्लिमीना, तो ये जमा मुजक्कर। अन्नास, अन्नास, इसमें जमा लोग, तो ये वर्ड थे जिसको अरब इसको जमा ही पढ़ते हैं, जमा कंसिडर करते हैं, इसलिए हम इसको इसको कहते हैं इसमें जमा। तो इसमें और कुछ नहीं देखना होता है, इवन के किसी कोई लैंग्वेज होती है इसमें, जैसे पीपल है, और इंग्लिश में अगर लेते हैं तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम लोग कहते हैं उर्दू में तो वो जमा के तौर पे हम लेते हैं। तो इसी तरह अरब भी नास को जमा के तौर पे लेते हैं। मुहसिनाती, जमा मुअन्नस
जमा मोहन्नस ये जमा मुअन्नस आती एंड पे आ गया। बुयूत, बुयूतिन घर, ये ज्यादा broken घरों को कहते हैं ना बुयूत, ये तकबीर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो जमा, इसमें तो इसकी कोई रूल फॉलो नहीं करना ना, आतिन नहीं है इसमें, बुयूतिन। मुहतदून, हदायत याफ्ता लोगों को मुजफ्फर कहते हैं, जमा मुज़क्कर। मुजक्कर नेक्स्ट टेबल है कौमिन, जमा इसमें जमा इसमें जमा क्योंकि अरब कौम को एज ए जमा लेते हैं। अल बय्यिनाती, जमा मुअन्नस जमा मुअन्नस क्योंकि इसमें आती एंड पे आ रहा है। ग्रोहों को कहते हैं अल अहज़ाब, अल अहज़ाबु। इसमें broken जमा नहीं, broken इसमें जमा होता है जो जिसको अरब कंसिडर करते हैं ना, तो वो सिर्फ हमने तीन है, वो कौम, कर्न और नास। तो कौम और अहज़ाब, सेकंड पे क्या बताया आपने? कर्न, कर्न और नास। अच्छा कर्न, कौम और नास। तो अहज़ाब इनको फॉलो नहीं कर रहा ना, आतिन नहीं है इसके एंड पे और ऊना ईना भी नहीं है, तो तकबीर ये जमा तकबीर है, ये रूल फॉलो नहीं किया इसने कोई भी। आयुनुन, आंखों को कहते हैं जमा आंखें, मुअन्नस जमा मुअन्नस होता है मुअन्नस तो फिर आतुन आतिन। ब्रोकन प्लूरल हाँ, ये भी जुमा ब्रोकन, तक ये भी जमा तकबीर। माँ की सूना। अगर हम्म? अगर बॉडी पार्ट्स में पेयर के बारे में बात हो रही हो फिर भी इसको नहीं कहेंगे जमा मुअन्नस नहीं नहीं, वो उसमें हम मुअन्नस मुज़क्कर नहीं बता रहे ना, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, इसमें जमा किस किस्म का है। तो इसमें सही जमा में जब है ना, तो जमा मुअन्नस सिर्फ उसको कहते हैं जिसके आतुन आतिन आ रहा सही हूँ। सिर्फ उसमें वो दो कैटेगरीज होती हैं, या वो जान इंसान होगा या वो नॉन ह्यूमन होगा, तो वो दो कैटेगरीज होती हैं उसमें। लेकिन जब हम मुज़क्कर मुअन्नस पे जाएंगे ना, तब उस टाइम हम कंसिडर करते हैं एज ए मुअन्नस आयुन उनको, अल अहज़ाब को भी एज ए मुअन्नस कंसिडर करते हैं। लेकिन उसको जमा में, अदद में उसको मुअन्नस नहीं कहेंगे, जमा मुअन्नस नहीं कहेंगे उसको। माँ की सूना, सही जमा मुज़क्कर जमा जमा मुजक्कर मुजक्कर ऊना एंड पे आ रहा। दिल को कुलूब, जमा तकबीर जमा मुजक्कर तकबीर, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, जमा जमा तकबीर तकबीर, कुलूब। ब्रोकन अस्सॉलिहाती, जमा मुअन्नस जमा मोहन्नस जमा मुअन्नस आतुन आतिन। अर्रुसुलु, तकबीर जमा तकबीर। गुड। तो ये ये इसकी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी और बहुत क्लियर हुई ये चीज तो ये एक्सरसाइज हमारी थी, इसमें हमने जमा बताना था कि किस किस्म का वो है। नेक्स्ट है मुज़क्कर मुअन्नस बताना। तो मुज़क्कर मुअन्नस में कुछ कितने टाइप के थे हमने पढ़े थे कि एक तो अभी हम पढ़ के आए ना कि जमा मुअन्नस जो है वो एज ए मुअन्नस ही कंसिडर होगा। और दूसरी एक चीज होती है कि जो ब्रोकन प्लूरल होता है वो भी एज ए मुअन्नस ही कंसिडर होता है। जी और फिर हमने पढ़ा था कि एंडिंग साउंड्स पे डिपेंड करता है कि अगर ये ता एंड पे आ ता जाए, मरबूता या ता अलिफ अलिफ मकसूरा आ जाए, या अलिफ ममदूदा आ जाए, तो ये भी मुअन्नस हो सकते मोहन्नस हैं। कंसीडर हाँ, होंगे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, तो उसी को हम इसमें इस एग्जांपल्स में देखेंगे आप। दुनिया, मुअन्नस तो मुअन्नस है, तो किस वजह से मुअन्नस है? अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा, ममदूदा मद्दा वाला अलिफ कहते हैं ना, आ लंबी साउंड, अलिफ मद्दा, अलिफ ममदूदा कहते हैं इसको। तो दुनिया मुअन्नस। अन्नार, और एक और कैटेगरी थी कि अरब मुअन्नस लोग जो हैं वो अरब कुछ लोग चीजें हैं जी उसको मुअन्नस ही कहते हैं। अरब सेट सो अरब सेट्स, तो वो उसमें अन्नार भी एक है। तो अन्नार क्या है? अनार मुअन्नस। मुअन्नस अल खासिरीना, मुज़क्कर मुजक्कर मुजक्कर। क्यों मुजक्कर है? कि क्यों ये ईना जमा मुजक्कर की तरह है ना, अल खासिरीना। ईना ईना और ईना इसमें कोई ऊना निशानी ईना भी नहीं है, ईना हाँ जी, कोई और मुअन्नस की इसमें कोई निशानी नहीं। तो वर्ड्स को हम मुजक्कर कंसिडर करते हैं अनलेस के वो कोई उसमें हम प्रूव कर सकें कि ये मुअन्नस है, अदरवाइज उसको मुजक्कर ही कहना है हमने, मुजक्कर। अल हसनतु, मुअन्नस फीमेल मोहन्नस मरबूता मुअन्नस किस वजह से है ये? ता मरबूता ये ता पे मरबूता ता मरबूता है। मरबूता अशम्सु, अरब सेट सो अशम्स मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? अरब इसको मुअन्नस मुअन्नस कहते इसको मुअन्नस से हैं। हाँ समाई भी कहते हाँ जी। अल मौता,
मौता मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस। मुअन्नस अलिफ अलिफ मकसूरा मकसूरा या एंड पे किसरा। हाँ जी। अल कमर अल कमर मुअन्नस शम्स तो मुअन्नस मुअन्नस था, तो इस्तेमाल कमर मुअन्नस है कि मुजक्कर है? मुज़क्कर कमर हाँ मुजक्कर है। चांद को मुजक्कर कहते हैं, शम्स को सिर्फ मुअन्नस कहते हैं, सूरज को हाँ मुअन्नस, कमर मुजक्कर। वदुहाहा हम्म। शम्स वदुहा जैसे वो सूरह अनाम में आता है ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे होते हैं, वाइजार अल कमरा बाजिगन, बाजिगन जो है वो मुजक्कर है, लेकिन जब शम्स की बात होती है ना, वाइजार शम्सा बाजिगतन, तो उसमें बाजिगतन है, सिफतन। क्योंकि कमर मुजक्कर है और शम्स मुअन्नस है। इकाबिन मुज़क्कर मुजक्कर, इसमें कोई, मुजक्कर। हाँ इसमें कोई भी नहीं है ना कि मुअन्नस की कोई निशानी नहीं इसमें। अल आखिरता मुअन्नस मुअन्नस, क्यों अगर अगर मुअन्नस? कोई निशानी ना हो तो बाय डिफॉल्ट मुजक्कर ही लेंगे। हाँ बाय डिफॉल्ट मुजक्कर लेंगे, या इसमें एक होता है कि एक रियल फेमिनन भी होता है ना, कि आपने निशानी उसमें कोई नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल ही वो लफ्ज औरतों के लिए होते हैं, जैसे जैसे माँ उख्तुन, राइट, इसमें तो कोई नहीं है ना, उख्त, उम, मरियम, मरियम में कोई निशानी नहीं है, लेकिन वो लड़की का नाम होता है, तो उसको हम एज ए मुअन्नस ही लेंगे, तो वो रियल अच्छा। फेमिनन उसको कहते हैं, कि वो चीजों के है ही वो मुअन्नस, वो जिनके नाम रखे हुए हैं हमने। अल आखिरता, तो बाकियों में हमने फिर वो जो नॉन ह्यूमन होते हैं ना, उसमें फिर हमने निशानी देखनी होती है, फिर उसमें से ये चार सारी कैटेगरीज में से हमने देखना होता है कौन सा है। अल आखिरता मुअन्नस मुअन्नस, क्योंकि ता मरबूता एंड पे। माँ है बनाती मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस, मुअन्नस। तो बिन्त और बनाती, ये आतिन तो लगा हुआ है, लेकिन ये असल में आतिन वो इसम वाला नहीं है, वो नहीं, प्लूरल वाला नहीं है, जो आतुन आतिन लगता है ना, ये जी बनाती, क्योंकि बिन्त होता है ना, बिन्त मुअन्नस बेटी को कहते हैं, इसमें बनाती उसका प्लूरल है, तो बिन्त भी मुअन्नस ही होगा। अल अर्द, मुअन्नस मुअन्नस जमीन को मुअन्नस लेते हैं, अरब क्योंकि इसको मुअन्नस मुअन्नस भी पढ़ते मुजक्कर हैं। गरूरन, मुज़क्कर गरूरन मुजक्कर, इसमें कोई निशानी नहीं, उस लिस्ट में भी नहीं है ये अरब वाली, अरब जिसको समझते हैं फेमिना। मरियम मुअन्नस मुअन्नस। आदुन मुजक्कर मुजक्कर। कुव्वतन मुअन्नस मुअन्नस, क्योंकि एंड पे ता मरबूत है, तो ये एक्सरसाइज हमारी मुअन्नस के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, हमने बताना है कि कौन सा मुअन्नस है, कि किस्म कौन सी है उस मुअन्नस की। तो मुअन्नस ये एक तो है कि अरब ने कहा है कि मुअन्नस है, अभी हमने पढ़ी थी ना कैटेगरीज की, अरब ने कहा है, वो पूरी लिस्ट है, वो आपको याद होनी चाहिए, तो लिस्ट हमारे पहले सबक में गुजर चुकी है जब हमने मुजक्कर मुअन्नस डिस्कस किए थे। दूसरा क्या है, जमा तकबीर जो होती है वो हमेशा उसको मुअन्नस और वाहिद कंसिडर किया जाता है, 99% ऑफ द टाइम्स, कभी कभी एक्सेप्शन होती है, लेकिन ज्यादातर तो आपने जब भी देखना है, अभी उसको आपने जमा तकबीर जब भी देखना है, उसको मुअन्नस ही कहना है। और तीसरी कैटेगरी थी ना कि इख्तितामी आवाज से पता चल जाता है कि ता, तीन थे ना, ता मरबूता, या मकसूरा और अलिफ ममदूदा, और एक है कि फितरी तौर पे ही वो लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस ये कैटेगरीज अब हमने बतानी है इसमें। तो इसमें पहला है अस्समाउ, अरब आसमान, मुअन्नस मुअन्नस, क्यों मुअन्नस है? जमा अरब सेट्स जमा मुकस्सर अरब इसको कहते अरब हैं। के साथ जहन्नम, अरब जहन्नम फेमिनिन भी फेमिनन ही है, और वो भी अरब उसको जहन्नम, आग, हाँ, इस तरह जो जहन्नम के और नाम है ना, वो भी यूजुअली मुअन्नस ही होते हैं। जन्नातिन, जमा तकबीर हम्म, जमा ये तकबीर तो नहीं, इख्तितामी आवाज इख्तितामी आवाज हाँ जी, जो इख्तितामी आवाज से आपके आतुन आतिन से भी पता चल जाता है कि वो मुअन्नस है। कसन, ये मुअन्नस किस वजह से?
अब जमा एख्तितामी तकबीर एख्तितामी आवाज तो नहीं है और फितरी भी नहीं नहीं है। है, कासन फिक्री कप भी नहीं कप है। को कहते हैं। तो इसमें जमा तकबीर हो सकता है या अरब हो सकता है। तो जमा तकबीर फाइंड करने के लिए हमें वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। अरब। लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर है, जमा नहीं है। तो ये अरब इसको मुअन्नस लेते हैं, कप को, गिलास को, पीने वाले कप को। सुदूर, जमा तकबीर। सदर सीने को कहते हैं और सुदूर जमा है उसकी। तो जब जमा है और वो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो जमा तकबीर है, और जमा तकबीर मुअन्नस समझी जाती है। सूरतुन, कुरान की सूरत। इख्तितामी आवाज। इसके एंड पे ये खोलता आई हुई है तो वो आवाज से पता चल गया। अलमुमिनातु, इख्तितामी। ये इख्तितामी भी आवाज। आतुन की पता चल गया कि ये मुअन्नस है। अन्नुजूम, जमा तकबीर। अर, अरब इसको लेते हैं। हाँ जी, दोनों दोनों है इसमें। इस ये क्योंकि प्लूरल आया हुआ है ना, नजूम तो जमा तकबीर भी है, और नजम को अरब सितारे को भी एज ए मुअन्नस ही लेते हैं। एक अगर सितारा भी हो तो नजूम तो जमा तकबीर भी है। तो दोनों दोनों इसमें, इसका सिंगुलर जो है वो अरब सेट्स हो, और प्लूरल तो होना ही था वो तकबीर, जमा तकबीर की वजह से। मुमिनतिन, इख्तितामी आवाज। आवाज क्योंकि ता एंड पे आ गई। बुयूत, जमा ज्यादा तकबीर। घरों को कहते हैं। जमा तकबीर है, अरब भी है। हम्म, अरब सेट सो भी और जमा तकबीर। हाँ। बैत भी अरब अरब सेट्स हो, इसकी जो सिंगुलर है वो भी। अरब भी घर को एज ए मुअन्नस लेते हैं, दार भी मुअन्नस होता है। अल कुबरा, इख्तितामी आवाज। इख्तितामी आवाज। या मुअन्नस। अलिफ मुअन्नस, मकसूरा। एख्तिताम की वजह या से। की वजह से। अन्निसाउ, फितरी। हाँ ये फितरी। निसाउ, इसमें और कोई निशानी नहीं है ना एंड पे ता। इख्तिताम। लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल ही औरतों के लिए होता है ना, इसका मीनिंग ही औरतें हैं। तो ये फितरी मुअन्नस। अन नफ्सु, अरब नफ्स को अरब जो है मुअन्नस कंसिडर करते हैं। मुअन्नस कलीमतु, अरब सेट्स हो। इख्तितामी कलीमतुन, आवाज। इख्तितामी ये आवाज। आवाज से पता चल गया। साउंड। समारातिन, इख्तितामी। ये भी इख्तितामी आवाज। आवाज से पता चल गया हमें, साउंड। क्योंकि आतिन एंड पे आता है। तो ये चार क्वेश्चंस हो गए हमारे, ये आखिरी क्वेश्चन है लास्ट। तो इसमें हमने ये चारों चीजें बतानी है। हम्म। तो इसमें हमने आराब, उसका स्टेटस बताना है, उसका नंबर बताना है, जिन्स और किस्म। किस्म में होता है, किस्म हमने पहले एक्सरसाइज नहीं की ना, तो किस्म होती है कि वो नकिरा है या एक एक मारफा है। करके बताना चाहिए। तो नकिरा है या मारफा है। नकिरा होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि आ, आदमी या लड़के, तो मुझे नहीं पता कि कौन से लड़के की बात हो रही है, एक लड़का। लेकिन अगर उस लड़के का नाम हो कोई तो पता चल जाएगा कि ये स्पेशल इस एक लड़के की बात हो रही है। तो वो हमें उसकी भी 7 कैटेगरीज थी कि उससे पता चलता है कि वो इसम जो है वो नकेरा है या मारफा है। 7 कैटेगरीज कौन सी थी, किसी को याद है? हम्म। नंबर 1, अल अल से अलिफ देखते अल हैं लाम। कि से लगा हो, हाँ जी, अल अलिफ और लाम लगाओ तनवीन शुरू में। देखते हैं। प्रोनाउन। तनवीन होती है। इसम मौसूल। नहीं, तनवीन जरूरी नहीं है। तनवीन तो रजुल उनकी भी तनवीन होती है, तनवीन जरूरी नहीं है। एक पहला होता है कि नाम हो किसी का, किसी जगह नाम का होता है खास नाम हो या किसी इंसान का कोई नाम हो, खास नाम। एक और दूसरा होता है अलिफ लाम लगा। तीसरा होता है जमीर, प्रोनाउन जो होते हैं, हुआ, जी। हुम, हुमा, ये सारे पूरी लिस्ट। फिर होता है इसमें इशारा, या। हाजा, जी। जालिक, ठीक है। फिर आता है इस अल्लाजी भी होता है। अल्लाह, हाँ जी, सम मौसूल। 5 हो गए। छठी क्या है जो आपने कहा अभी? या बुलाने के लिए। बुलाने के लिए, तो पुकारना हो किसी को। और आखिरी जो है वो अगर मुजाफ ले। मुदाफ मुदाफ अलैह वाली। अगर मुदाफ अलैह होगा मारफा तो मुदाफ भी मारफा होगा। तो ये एक्सरसाइज अब हमने करना। अल हवा, तो पहला वर्ड है अल हवा। तो इसका स्टेटस पहले बताना है हमने, ये रफा है, नसब है या जर है। क्या हो सकता है? रफा, नसब, जर।
तीनों। रफा। ये तीनों हो सकते हैं क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, या हवा हवा ही रहता है। जैसे ईसा होता है, हाँ जी, जैसे ईसा तो खैर ईसा नाम है, मूसा। लेकिन हाँ उसके जी। एंड पे वो होता है या मूसा। हाँ जी, तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना, जो चेंज ही नहीं होते ना, ये हवा ही कहते हैं उसको। तो आराब इसके रफा भी हो सकता है, नसब भी और जर भी। नंबर क्या होगा इसका? 1 2 या जमा? वन। 1, तो ये सिंगुलर एक चीज। तो प्लूरल कैसे पता चलता है? ऊना, ईना, आतुन, आतिन। और दो कैसे पता चलता था? आनी और आईनी लगा हो तो दो का पता चलता है। जी। मुजक्कर या मुअन्नस? मोहनस। मोनस। क्योंकि या मकसूरा एंड पे है तो मुअन्नस या की वजह से। मोन और किस्म मारफा मार्फा। या नकेरा? मारफा। क्यों? अलिफ्लाम। अलिफ लाम की वजह से। गुड। मुनजिरो? मुनजिरो रफा। 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 नंबर? वन। नंबर वन। 1, इसमें कोई प्लूरल की नहीं है, कोई निशान नहीं इसमें। मुजक्कर मुजक्कर जिन्स है। क्या है? मुजक्कर मुअन्नस की मुजक्कर। कोई अलामत और नहीं है। मुजक्कर। नकीरा। और किस्म नकीरा। नकीरा, क्योंकि मुंजिर होता है डराने वाला। तो किस्म नकीर, नकीरा। तो डराने वाला जब हम कहते हैं तो हमें नहीं पता ना स्पेशली कौन डराने वाला है। तो ये जनरल टर्म है, तो जनरल जो होते हैं वो नकीरा। अल अच्छा मुफसिदीन। भाई, ऊपर आपने जिन्स में ना मीम को कर दिए सर्कल। और अल हवा का मोनस था ना। मुअन्नस थे, उसको मैं ठीक कर दूं। हाँ, ये इसको मुअन्नस कर दिया हमने। इसमें था जिन्स में मोनस। मुअन्नस कर। अल हवा। हवाओं के सारे नाम ही, जैसे रीहुन, हाँ जी, हाँ जी। वो भी मोनस कंसीडर होता है। आइन क्या है? है? अरेज राउंड कर दिया मैंने। अच्छा, अरेज राउंड कर दिया। ये मेरा हर इसका आइन, आइन मैंने क्यों लगाया? असल में मीन, मुजक्कर और मीम मोनस नहीं, दोनों से मीम असल में स्टार्ट मीम होते हैं। मुजक्कर है और आइन औरत है। आइन आ- मोनस है, अच्छा। आइन मुअन्नस है असल में। तो इसलिए पहले वाले ठीक करना हमने। नहीं भाई, आपने पहले भी मीम को ही सर्कल किया हुआ था। हाँ वही ना, आइन को करते हैं ना हवा। आइन को सर्कल करना हाँ था जी, जी। आइन को करना था उसको, जेंस में आइन को करना। अल मुफसिदीना, रफा नसब? मुफसिदून। मुफसिदूना, मुफसिदीना, मुफसिदीन या मुफसिदीन। नसब और जर। नस्ब नसब। और जर। नंबर? 3+। 3+। ये जमा के लिए। और तो जेंस भी में हो सकता है। क्या हो सकता है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, गलती से कह दिया हाँ, ये, कुछ दो मुजक्कर। कहना था। मुजक्कर है ये, हाँ मुजक्कर। जी। मार्फा। ये मुजक्कर मौर। है और अलिफ लाम लगा हुआ है तो मार्फा। रिजलैनी, सॉरी रजुल। रजुलैनी, रजुलैनी। आनी आईनी आईनी। नस्ब और जर। नसब या न- जर। सब और नसब जर। जर। टू। ये टू। 2 है। और मुजक्कर मुअन्नस? मुजक्कर। 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 और किस्म नकीरा। ये नकरा। नकीरा, क्योंकि कोई भी दो आदमी। मर्रतैनी, इमरातैनी। नसब और जर। नस्ब और जर। नस्ब और जर, टू। ये भी ऐनी एंड पे है और 2 के लिए इस्तेमाल होता है। टू। मोनस। और मुअन्नस मोनस। है। क्यों मुअन्नस है? क्यों? इमरा औरत। इमरातुन औरत को कहते हैं। हाँ जी, औरत को ही कहते हैं। तो आइन औरत, मीम मुजक्कर है और आइन औरत है। नकीरा। किस्म नकरा। नकिर। शुहदाउ, शुहदा। शुहदा आ आ, लिखा था। सॉरी, शुहदा आ। नसब। नसब 1 2 3। 1। थ्री। तो इसमें इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि आप कहेंगे कि शुहदा हम जमा को कहते हैं, राइट? शुहदा जमा, लेकिन क्योंकि ये जमा तकबीर है ना, तो जमा तकबीर दो चीजें होती हैं, एक रियलिटी होती है और एक उसका ग्रामर में कैसे कंसिडर करते हैं। रियलिटी में तो वो जमा है, लेकिन ग्रामर में हम क्या कंसिडर करेंगे इसको? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर और मुअन्नस। तो जमा तकबीर जितने भी होते हैं, ब्रोकन प्लूरल, वो सिंगुलर मोनस और को मुअन्नस हम उसको ग्रामर में कहेंगे। लेकिन कंसीडर जब हम करते हैं। तर्जमा करेंगे तो हम अपनी जुबान में जैसे भी उसको एज ए जमा का तर्जमा करेंगे। नकेरा या मारिफा? नकरा। नकेरा,
क्योंकि शुहदा का मतलब है, अशुहदा भी होता है हाँ ना, जी, अलिफ लाम होता तो मार्फा। अलिफ लाम होता तो मुज़क्कर होता। अल गाफिलाती, इसके नसब या नसब या जर, अल गाफिलाती, तो अल गाफिलातू उसका रफा है, अल गाफिलाती और अल गाफिलाती नसब और जर। नंबर आतो नातिन, तो ये जमा के लिए, और मुअन्नस मुअन्नस क्योंकि आतो मोहन नातिन मुअन्नस के ही एंड पे आता है। प्रॉपर और ये मार्फा है क्यों, मार्फा। इसके अल लगा हुआ। अल सिनातु हु, अल सिनातु, तो ये रफा है रफा। और देखने में सिंगुलर लग रहा है। अल सिनातु सिंगुलर, तो ये अल सिनातु का मतलब होता है जुबान ने, जमा जमा में इस्तेमाल होता है अल सिनातु। तो जमा जब हम कहेंगे तो इसको एज ए मुअन्नस मुअन्नस कंसिडर करेंगे क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल। अब नकरा है या मार्फा है? मार्फा मार्फा। आप कहते हैं कि अलिफ लाम लग गया है तो मार्फा हो गया, लेकिन अलिफ लाम अगर लफ्ज का पार्ट हो, तो फिर लिसान, मार्फा नहीं होता। और लिसान इसका से पार्ट अल सिनातुन होता है ना, निशान से अल सिनातुन, अल जहाँ पे लफ्ज का हिस्सा है वो अलग से अल नहीं लगा हुआ है, तो ये नकेरा होगा कि जुबानें, कौन सी जुबानें, जनरल है ये हमें नहीं पता, तो ये इसमें इसीलिए हम इसको नकरा कहेंगे। मुबर्राऊना, ये रफा। ऊना एंड पे तो रफा, मुस्लिमूना की तरह। और प्लूरल 3 प्लस मुजक्कर या मुअन्नस, मुज़क्कर मुज़क्कर। और नकेरा या नकीरा मारिफा, तो ये नकेरा, अलिफ लाम नकीरा। नहीं है। मुबर्राऊना जनरल वर्ड। नूर, नूरी, जर तो साउंड से पता चल गया, ई साउंड जर। अदद वन सिंगुलर। वन। नूर अब मुजक्कर होगा कि मुअन्नस होगा? मुज़क्कर। मोनस। इसमें कोई नजर नहीं आ रही ना उसकी वजह कोई, तो मुअन्नस ही हम कहेंगे, ओ सॉरी मुजक्कर कहेंगे, मुअन्नस की वजह नहीं है। किस्म क्या है इसकी? लेकिन अगर नूर ये किसी औरत का नाम होता तो फिर हम मुअन्नस कहते हैं। नूर औरत के नाम भी होते हैं और आदमियों का नाम भी होता है। तो अगर किसी का ये नाम रखा हुआ है ना, तो अगर आदमी का नाम है तो मुजक्कर होता होगा, औरत का नाम है तो मुअन्नस होगा। अगर नाम होगा तो फिर मार्फा भी होगा ना। नाम होगा तो मार्फा भी होगा, हाँ जी। और किस्म यहाँ पे अगर सिर्फ लाइट के तौर पे लेते हैं तो नकेर। अल लैला, नसब नसब नसब, आ की साउंड एंड सिंगल। में, लैला वन सिंगुलर, रात को कहते हैं। और मुअन्नस मुअन्नस मुअन्नस, रात को मुअन्नस कंसीडर करते हैं। और मारफा। किस्म क्या है, अलिफ लाम लगा प्रॉपर हुआ है तो मार्फा। रिज लाइन दोबारा आ गया। वो अच्छा, रजुल वो है रजू लाइन था, ये रिज लाइन नहीं है। हाँ जी, अब ये डिफरेंट है। रिज लाइनी, रिज लाइनी, नसब और नसब या जर। नसब या जर। आईनी, आईनी की साउंड आ रही है। छू आदत क्या है, टू। टू। आनी आईनी दो होता है। मुज़क्कर रिज लाइनी बंदे। मुजक्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। मुज़क्कर। तो ये बॉडी पार्ट है ना, पाँव है बॉडी पार्ट पेयर की सूरत में जो होते हैं वो मुअन्नस मुअन्नस। तो रिजलैनी फीट को कहते हैं, हाँ जी, पैरों को। पैरों को, हाँ जी, टांगों को भी कहते हैं, पैरों को भी कहते हैं। रिजलैनी क्योंकि बॉडी पार्ट्स हैं, और जो बॉडी पार्ट पेयर में होते हैं वो मुअन्नस कंसिडर होता है, नकीरा नकीरा। What's the singular for that? रिजिल, रिजल रिजिलुन सिंगुलर, रिजलैनी। अल अतफालु, रफा। ऊ साउंड एंड पे रफा। नंबर वन। 1, जिन्स मुज़क्कर। मुजक्कर, बच्चे को कहते हैं, और इसमें कोई मुन्नस की निशानी भी नहीं है, लड़के छोटे बच्चे को कहते हैं मुजक्कर। और मार्फा। अल लगा हुआ है तो मार्फा। खालाती, खालाती। ये नसब या नसब या जर। जर। नसब या जर। प्लूरल थ्री प्लस मुजक्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस। खाला वैसे भी मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है, और आती भी एंड पे। किस्म क्या होगी इसकी? नकीरा। नकीरा। नकरा। कर्निन
टर्निंग जर जर अदद वन 1 कर्न अदद 1 1 है, लेकिन कर्न उसमें है कौम कर्न और नास समझा। में। जी अरब कर्न और नास इन तीनों को जमा कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम इसको जमा कहेंगे। देखने में तो सिंगुलर लग रहा है ना, लेकिन अरब इन 3 लफ्जों को एज ए जमा कंसिडर। जो इसम जमा है उसको हम प्लूरल नहीं कंसिडर करें। हाँ, उसको प्लूरल करना है, हाँ उसको प्लूरल करना है, ब्रोकन प्लूरल को सिंगल करना है। हाँ, ये फर्क है। सही। और जिन्स क्या है इसका? यानी मुज़क्कर अगर इसका। कुरान में आएगा तो हाजी ही कौमुन, हाजी ही कर्नुन, नहीं, हाजी ही हाउलाई कौमुन आएगा ना। हाउलाई। हाँ, तो प्लूरल आएगा ना, जैसे सही। हाउलाई सूरह कहफ में आता ना, हाउलाई कौमुन अत्तखज़ु। हाँ, क्या हाउलाई कौमुन, तो इसलिए वो हाउलाई आया क्योंकि कौम को एज ए प्लूरल लेते हैं, जमा। और कर्न भी नकेरा मार्फा नकेरा। जिद्दन नसब 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 वन 1। कहाँ भी आता है ना, इन्ना हाउलाई कौमुन फासिकीन, हाँ हाँ, उसमें भी आता है है कौमुन, ना? कुछ कौमुन ऐसा आता है फासिकीन। कहीं। हाँ, कौमुन के साथ जमा आता है, कौमन फासिकीन या कौमुन फासिकून, जब वो ऐसे मसूफ सिफा आता है। बिल्कुल, जकर मुज़क्कर और नाकिरा। अदनी जर अदनिन जर सिंगुलर या प्लूरल? 1 1। अदनिन मुअन्नस या मुज़क्कर? ये मोनस इसको मुअन्नस इसलिए मुज़क्कर। लेते हैं, क्यों मुअन्नस है? मुअन्नस होता है क्योंकि जगहों के नाम जो होते हैं ना, वो मुअन्नस। अदनिन एक खास जगह का नाम है, कि जन्नत का एक जगह है जन्नत जिसको का नाम अदनिन कहते हैं ना, तो वो खास जगह का नाम है, तो इसलिए उसको मुअन्नस, जगहों को मुअन्नस कहते हैं। और नकेरा या मारफा? और यहाँ नस पे पाकिस्तान में ये लड़कों मारिफा का नाम रखते जन्नत का हैं। नाम है इसके। हाँ जी, मारफा होगा, क्यों खास नाम है। हाँ जी, एक खास जगह का नाम अदनुन, पता चल जाता है। इब्राहिमा नसब या जर सब जगह सिंगुलर। 1 इब्राहिम नसब या अलैहिस्सलाम जर। तो एक ही है। इब्राहिम मुज़क्कर अलैहिस्सलाम के तो मारफा जिन्स भी मुज़क्कर ही है, लेकिन मारफा मारफा या नकेरा? मारफा मारफा, क्योंकि इसका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है, स्पेशल नाम। तो ये एक्सरसाइज हमारी थी, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ हो तो, अगर नहीं कुछ कुछ और अगर इसमें है कोई कन्फ्यूजन, तो आप दोबारा लेसन देख सकते हैं पीछे जाके। तो लेकिन ये माशाल्लाह हमने ये एक्सरसाइज करके पूरा ये चैप्टर हमने किया और फिर रिवाइज कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम उसके मरकबात को पढ़ेंगे, फ्रेगमेंट्स, जिसको इंग्लिश में फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो जब 2 लफ्ज मिलते हैं ना आपस में, तो फिर कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।